starts singing Pehla Nasha. Okay, and my jaw was on the floor. I had never heard anybody sing that good live. And that is how, it's not love at first sight, it's love at first sound. स्पेशल मेमोरी है जब सचिन तेंदुलकर साहब के घर पर मुझे 3 बार परफॉर्म करने का मौका मिला है जी। म्यूजिक और फोटोग्राफी में। Oh, तो कॉम्पोजिशन में एक एक वर्ड है जो म्यूजिक में भी है और फोटोग्राफी में भी है, का टिकट मैंने खरीदा था बिकॉज लता जी वॉज गोइंग टू कम इन दैट शो एंड शी केम ऑन स्टेज एंड आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन आई स्टार्टेड क्राइंग कि पहली बार माँ सरस्वती के दर्शन हुए हैं एंड आई कुड नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ये तो खुशी का पल होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम मैं लता जी को देख रहा हूँ, बट वो वैसा ही पल था, ओवरवेलमिंग पल था। राइट कि हमारी गाढ़ी बातें होती है तो हमारी वाहियात बातें भी बहुत होती है एंड वो लेगेसी हमारा बेटा कैरी ऑन करेगा। तुमने rather you mentioned that how your wife has been important in you learning the language and emotions behind the songs. Yes. And we've only seen her in FB pictures and never heard her. At least I haven't. Yes, surely. Just give me a second. Yeah. Welcome, Sapna. And Hi, Rashi, how are you? I'm all good. First of all, I must say Sagar has a great choice, not just I know. so his taste of music is fabulous, but we can see his taste in life on the screen. Sweet, So, thank you. Sapna, how did you meet? Like, were you his fan or something? No, we were together at college. So we Oh, were 17, yeah, and I was this big bookworm, glasses, always a book in hand. And first week of college, you know how college classes, there are popular kids, there are introverted kids, all of that. And then there was this. but you still look like a college student only. So I think again, Rab ne bana di jodi hai. Even Sagar looks like that. You Frozen, won't believe, at our wedding, people were like, "ये बाल विवाह हो रहा है, ऐसे रखा जाए." frozen, So, frozen at 17, I think. Yeah. so Yeah. in college, there was this flurry of excitement in class one day that there is this kid who sings very well. So I was like, अच्छा देखते हैं. देखा तो सामने there is this t-shirt के ऊपर shirt cap वाला लड़का sitting on the bench on the desk facing all of us, Okay. and he starts singing Pehla Nasha. Okay, and my jaw was on the floor. I had never heard anybody sing that good live. And that is how, it's not love at first sight, it's love at first sound for Sound. us. Wow. क्या बात है, क्या बात है. Yeah. What a So word. from then on, we became friends, we became best friends. फिर कॉलेज खत्म हुआ, बाकी दोस्तों को बोलते रहते थे कि चलो मिलते हैं, लेट्स कैच अप, ये वो, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं था. एक्चुअली सिर्फ हमें एक दूसरे को मिलना था. Okay. तो तो we realized कि चलो, then we started dating, this, that, and we've been together since. It's been really good 22 years. So, Wow. क्या बात है यार. Super. And was it easy then converting the marriage, I mean, converting the dating into marriage? yeah, I think both sides, the families had an inkling because हम दोनों भी बहुत extroverted नहीं है. It's not like we have big circles. तो ज्यादा एक दूसरे के साथ ही हैंग आउट करते थे, तो इवेंचुअली पता ही था कि ओके ऐसा कुछ होगा. बट या सिंस आई एम मारवाड़ी तो थोड़े चैलेंजेस थे कि ओके आउट ऑफ कम्युनिटी एंड ऑल दैट, बट ठीक है, पेरेंट्स लाइक्ड हिम अ लॉट टू. Yeah, right. So did he sing his way to their heart or? No. He was liked for, being sweet, gentle, having such a charming personality, and they could see that, whenever we are together, it's just right. Yeah, yeah. It Wow, worked out. lovely. Yeah. In fact, singing would have been a concern क्योंकि unconventional career choice है. So Yeah. My dad had those concerns. फिर हमें उन्हें उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ा कि पापा आप बिजनेस करते हो, वैसे ही इनका भी बिजनेस है, ये भी फ्रीलांसर है, तो आपको भी एक दिन नाना जी ने ट्रस्ट किया था, वैसे आप भी इन्हें ट्रस्ट कीजिए, मेरी क्या चॉइस बात है. ट्रस्ट कीजिए. तो थैंकफुली टच ब्लैक, इट्स ऑल बीन ग्रेट. Wow, क्या बात है. Lovely. अभी So सबसे ज्यादा सागर के वीडियोस पापा ही फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि मेरे जवाई है. ही इज सो प्राउड. wow, wow. So वो होते हैं ना phases होते हैं from doubt to confidence and then to love.
So your parents towards Sagar, and I think vice versa must have been true for you Yeah, also. it's been good. Yes. Wow. Wow. So fulfilling. Sagar, can we have you in the frame, in the same frame? Yes. वो एक पॉपुलर टीवी शो में बात की थी कि आप लोग फ्रिज में सोते हो क्या, मतलब हाउ का Well, back at you, yeah. We are all from the same category, I think. super, yeah. So did you like music as much as Sagar does before you met him, or you guys transferred some love for art? Actually, it's very funny. I am from a very Bollywood loving background. So my introduction to music was more movies, हाँ, and his introduction to music has been more auditory. So then when we would, together hear a song, we would both love it for separate reasons. I would be more into the lyrics of it, and he would be more like क्या हरकत ली है सिंगर ने, या पीछे वो वायलेंट पीस सुना तुमने क्या डाला है म्यूजिक डायरेक्टर ने. And slowly then we started appreciating each other's points of view, you know. wow. उनने लिरिक्स पे भी ध्यान देना ज्यादा शुरू किया. एंड मैंने कि अच्छा ये राग है तो इसमें ये ट्यून कैसे जाती है, ये वो सब. तो वी हैव बीन एक्सचेंजिंग नोट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. It Super. doubles our enjoyment of the same piece. Absolutely, yeah. It's such a thrill, and when you come from that learning attitude, it's thrilling rather. We are a couple of nerds. We are always learning. And सिर्फ म्यूजिक या उर्दू हिंदी ये सब नहीं. सागर को तो you should have seen him in pandemic. मतलब बाकी दुनिया ऐसा फ्रस्ट्रेट हो रही है कि हम घर पे क्यों बैठे हैं, और ये बंदा जापानीज स्क्रिप्ट सीख रहा है. हाँ, कांजी के कैसे लिखेंगे, क्या हीरा. There are a couple of scripts. तो जैसे भाषा का कैसे होता है कि अगर आप एक भाषा से प्यार करते हैं तो you are attracted to several other languages. Correct. So Japanese language is also one language which I have always fascinated by. अच्छा. तो मैंने थोड़ा मेरी उर्दू स्क्रिप्ट पे भी थोड़ी मेहनत की थी पैंडेमिक में. एंड क्योंकि वक्त ही वक्त था तो जापानीज स्क्रिप्ट भी मैंने थोड़ी सी सीख ली थी. तो yeah, such things we used to do. No, it was fun. Pandemic gave us time to collaborate also, get more creative. थोड़ा हमने भी गाने वाने लिखे साथ में बनाए. It was fun. Actually, मैं सोच रही थी, मैं पूछने वाली थी कि how were COVID times for you, because career had come to a halt for good 7-8 months or maybe more than that. So I was afraid at first, because he would come back from his shows riding such a high कि बहुत मजा आया. पता है audience, he's not able to sleep at 2 in the night. He has so much adrenaline from the show, from the energy, that 4 बजे तक बातें करेंगे. फिर मैंने वो गाना लिया, फिर पता है ऐसा वो वाला रिक्वेस्ट आया था, आज तो मजा आ गया ये वो. एंड देन पेंडेमिक में कुछ नहीं. तो आई वाज स्केर्ड कि he should not feel down or he should not feel that void. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. ही केप्ट फ्यूलिंग हिज अदर डिजायर्स जिनको इतना टाइम नहीं मिलता था कि चलो अब उर्दू में मैं पूरी तरह घुसूंगा एंड एवरीथिंग. एंड देन गुड थिंग अबाउट सागर इज कि सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देते हैं. ही इज लाइक अगर मैंने सीखा है मैं दूसरों को भी बताता हूँ. तो ही स्टार्टेड दैट पॉडकास्ट जिसकी जुबा उर्दू की तरह. बोला ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है. एप्पल पे टॉप कर रहा है. हाँ, एप्पल पॉडकास्ट पे नंबर 1 इट बिकेम. क्या है ये बंदा कुछ भी स्टार्ट करता है इसका एकदम सही हो जाता है. गुड, ब्लेस्ड, lots of love he has received from different countries, directions, people. It's good. Wow, yeah, thank you so much for highlighting this, because Sagar तो खुद के बारे में इतना वो he will not say. And, But that's good. वो boasting, bragging, no. So no, he's got this very modest nature, Yeah. always joking, always self-deprecating humor. But that's Yeah. nice. Yeah. In fact, अभी the Kahani Street पे Shikha ji has requested him to restart जिसकी जुबान उर्दू की तरह. And yeah, even I am in that list कि आपको वापस. जैसे ही नए उर्दू अल्फाज आ जाएंगे मेरे पास, I'll definitely make an episode. Yes. और इनफैक्ट तुम गुलजार को भी इतना रीड करते हो, गालिब को भी करते हो, तो वहां से भी कुछ ला सकते हो. योर इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएट्री. My Gulzar obsession started because of her. She is a Gulzar fanatic. ओह, मतलब बात ही हमारी ऐसी होती है कि कच्चे पक्के शेरों से चोर, क्या कच्चे पक्के बेरों से चोरी के शेरों से दिल बहलाता है मुंडा मेरा. तो that's what she always says.
to क्या me. बात है। अरे उनकी बातें इतनी प्यारी होती है, ऐसा लगता है हर लाइफ के हर सीन के लिए एक गुलजार लाइन है, यू नो। इन रिटर्न ही ऑल्सो सेज टू मी कि क्या दूध का उबाल है, हंसी तो कमाल है, मोतियों में तुलती है। तो हम कॉम्प्लीमेंट भी एक दूसरे को करते तो गुलजार साहब के शब्दों में करते हैं। So अरे that's how important Gulzar Sahab is in our life. आई थिंक गुलजार जी वुड लव टू हियर दिस कि दो बंदों की जिंदगी में ही इज प्लेइंग रोमांटिक पार्ट, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना भी गुलजार की लाइंस में। वाह। Yes. I think one more passion you both share is travel, right? Or is it only Sagar? Both of us. love traveling. In fact, there is a long list जो इनको थमा रखी है कि लाइफ खत्म होने से पहले लिस्ट खत्म होनी चाहिए। Okay, so now we know where is the itinerary coming from, the demand for itinerary rather. So any memory, any special memory with any particular destination? एक तो वो तुम्हारी फोटो थी जो बहुत ज्यादा कुछ ऊंचाई पर ली थी, एंड आई रिमेम्बर एक बवाल सा हो गया था कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ से ये फोटो निकाली है, रिमेम्बर? Yes, वो हम गए थे उत्तराखंड. उत्तराखंड। And Sapna had chosen that beautiful dome-like structure. And वो जो रील्स में जैसे होता है ना कि यार एकांत चाहिए, तो हाँ we wanted to do a trip जहाँ पे बहुत सारा एकांत हो, बहुत शांति हो, and we could spend some quality time. तो she had found this beautiful hotel, and वहाँ पे हाँ मैंने वो फोटो जब अपलोड किया था तो बवाल ऐसे सॉर्ट ऑफ ये हो गया था, people were scared कि यार कहाँ बैठे हो तुम. हाँ yeah. So there was this carpet of coniferous trees below, you know, valley था पूरा, and आप ऊपर एक डोम में बैठे हो, सामने हिमालयस दिख रहे हैं, स्नो लैडन, तो बहुत अच्छा था। ऑल्दो 0 डिग्रीज थे। हम मुंबई वालों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट इट वाज वर्थ द एफर्ट। वाह। हाँ, तो वो एक फोटो के अलावा एनी सच मेमोरी ऑफ एनी डेस्टिनेशन? Actually, more than, you know, a stunning place or a very blue beach that you might see, it's very odd memories that we cherish. कि आप बाली में हो एंड आप कोई रैंडम कैफे में रोड साइड में जाके बैठे हो एंड वहाँ कोई 3 पीस बैंड है, यू नो, स्टेज पे जो कुछ प्यारा सा पीस बजा रहे हैं इन अ लैंग्वेज वी परहैप्स डोंट इवन अंडरस्टैंड, एंड हम दोनों बैठ के वहाँ पे चिल कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट लिसनिंग टू देम, लिसनिंग टू म्यूजिक फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे सब मेमोरीज वी रियली लाइक। फिर कभी कोई पूछेगा कि चलो ऑडियंस में से कोई गा सकता है क्या, एंड सागर वुड ऑफ कोर्स बी लाइक माइक बैक इन माय हैंड, माइक प्लीज, एंड ही वुड सिंग सम नाइस you know, romantic song for me. वैसे सब we really enjoy connecting with different people, different cultures through our travel. Wow. So it's more about experience and not just about hogging from your eyes. ये देख लूं, वो देख लूं, ये कर लूं. No, it's a very holistic thing. We love talking to locals also. कि आपके कल्चर में ये कैसे होता है, you know, मेरे वो पूरे वो जर्नलिस्टिक इंक्लिनेशंस बाहर आ जाते हैं, then we chat a lot. It's fun. Wow. Wow. This is so good. Very, very different and very unusual. I don't know. At least मैंने even I don't have a very big circle. पर जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होते रहता है, इस तरह की कहानी एक तो कम है कि 17 के एज से आप साथ में हो एंड यू स्टक टू ईच अदर, मतलब इतना के लोग परेशान है, वो जो अजीब दास्ता है के अंदर लाइन है ना कि किसी के इतने पास आ गए कि सबसे दूर हो गए, हो गए. वैसा वाला कुछ कि यार तुम लोग कितने चिपको, कभी तो बाहर आया करो, कभी तो दूसरों से मिला करो। लाइक हाँ आते हैं करते हैं, हमारी बातें थोड़ी खत्म हो जाए उसके बाद। Wow, so maybe this is also some lifetimes karma must have gathered and you both had to be What we different. believe, that's what we believe. तो जैसे मेरा भी बैकग्राउंड ब्लर है, वैसे ही everything becomes blur when both of you are together, something like that. Yes, it does happen. Yes. Wow, lovely. And you have a son, right? Yes. So A 10-year-old who's equally ridiculous, equally into nonsense as we are. So जैसे मैं आपको बता रहा था राइट कि हमारी गाढ़ी बातें होती है तो हमारी वाहियात बातें भी बहुत होती है, एंड वो लेगेसी हमारा बेटा कैरी ऑन करेगा. yeah, talking about legacy, you had posted once ki you would voice over for Disney and your son also got that opportunity somewhere. So ये इस part
this part of your career, Sagar, Yeah. and about your son also? सो डिज्नी के साथ काफी सालों का एसोसिएशन है, एंड इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई हैड ऑडिशन फॉर डिज्नी, कंसिडरिंग की थिंकिंग कि इट्स एन ऑडिशन फॉर सिंगिंग। बट अच्छा। जैसे ही मैं वहां पर गया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये सिंगिंग ठीक है, आप सिंगिंग भी कराएंगे आपसे, बट आपको काफी सारे जॉब्स यहाँ पर करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू एंकर, यू विल हैव टू एक्ट ऑल्सो, अच्छा। एंड यू विल हैव टू डब ऑल्सो फॉर अस, वॉइस Okay. एक्टिंग ऑल्सो। और ये चीजों से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था। बट दे सेड कि नहीं, आई थिंक योर फेस इज वेरी सूटेबल फॉर वॉल्ट डिज्नी, तो आई थिंक यू गिव इट अ ट्राई। तो मैंने बस वहां पे ट्राई कर दिया था, और फिर उनके साथ एक बड़ा एसोसिएशन मेरा हो गया। तो I have anchored for them, I have acted, but I'm a terrible actor, let me tell you. Thankfully, ये YouTube के पहले की बात है, तो episodes बिल्कुल भी available नहीं है. So nobody will ever know what a bad actor I am. So I think that's great. Yeah, she knows, but that's okay. मैंने बोला ये छोड़ो, नहीं तो शादी नहीं होनी हमारी। But I have enjoyed dubbing lots of shows for Walt Disney. 50 shows you've done? Yeah, about almost 40-50 shows I have dubbed for them. So तो what and character? What was the character you would dub for? तो एक हैना मोंटाना एक बड़ी फेमस सीरीज हुआ करती थी। Yes, yes. सो देयर वाज अ कैरेक्टर हैनाज फ्रेंड ओलिवर। सो Okay. वो आवाज जो है, अगर आप कभी हिंदी में वो एपिसोड देखे तो वो मेरी आवाज है। प्लीज कुछ हो जाए यार लाइव, अगर तुम्हें कोई लाइन याद है नहीं, तो। कोई लाइन तो भी याद नहीं, बिकॉज बहुत सालों पहले की हाँ। बात है। एंड इट यूज्ड टू बी कन्वर्सेशनल, कि सीन बेस्ड होता था वो, कि वट एवर दे आर एक्टिंग वी यूज्ड टू डब इट इन हिंदी। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, समथिंग। इन चीजों में मजा आता है कि आप, ये आपके दायरे के बाहर वाली चीज है। तो अगर आप कोई चीज करते हो एक्सपीरियंस, तो आई थिंक उसमें एक अलग मजा है। एंड देन आफ्टर लॉट्स ऑफ इयर्स, जब एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक छोटे बच्चे की आवाज चाहिए हमें डबिंग के लिए, एंड एक छोटा सा सॉन्ग भी था शायद उसमें। तो Okay. आई वाज आस्क्ड कि डज योर सन सिंग, वुड ही बी कीन? तो आई सेड कि आई कैंट प्रॉमिस, बट मैं उसको स्टूडियो में लेके आता हूँ, फिर कंफर्टेबल डूइंग इट, तो हम लोग कर लेते हैं। एंड थैंकफुली ही ऑब्लाइज्ड, वी वेंट टू द स्टूडियो। उसने गाया, तो आई थिंक एक फुल सर्कल कंप्लीट हुआ। इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, कि जो चीज एकदम टिपिकल पेरेंट इंस्टिंक्ट था वो, कि जो चीज मैंने शुरू की थी, मुझे बड़ा मजा आया, तो मेरा बेटा भी आज वो कर रहा है। ही may not do it professionally in future, but because he did something that I was part of many years ago, Right. I think that was very special for me. Wow, so nice. So amazing. Something to cherish. Yes, yes. Time stands still, वो वाली moment एकदम. So did voiceover add to your emoting in singing? Because there's a lot of emoting you need to do there. It definitely helps in अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो सिंगिंग भी जो है, सिंगिंग भी एक तरह की एक्टिंग होती है। सपना. शी इज देयर, शी इज देयर, शी इज देयर। Okay, ठीक है. तो सिंगिंग भी जो है वो एक किस्म की एक्टिंग होती है। एंड आई थिंक आशा जी से बड़ा एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है? यू विल सी सो मेनी सॉन्ग्स इन विच आशा जी हैज एक्टेड, लिटरली ऑल सिंगर्स इन फैक्ट। तो जब आप एक्चुअल में वॉइस एक्टिंग करते हो, जहाँ पे आप डायलॉग्स कह रहे हैं, तो आई थिंक इट डेफिनेटली हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग। Also, it's a lot of energy, lot of लॉट ऑफ belly एनर्जी। voice and yeah. यस। एंड एक वोकल जो स्ट्रक्चर होता है, आपको काफी ग्राफ में आपको इमोट करना पड़ता है। तो वो अप्रोच डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है सिंगिंग में भी, जहाँ पर यू हैव टू ब्रेक इनटू अ डायलॉग इन अ सॉन्ग। जैसे कुछ कुछ सॉन्ग्स होते हैं वैसे, जहाँ पे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, वो हो गया। या देयर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स इन विच यू हैव टू हैव अ डायलॉग। तो अ डायलॉग शुड नॉट साउंड लाइक अ सॉन्ग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेलोडी से उतर के आप बात भी कर पाए उसमें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट Yeah, जब वॉइस एक्टिंग आप करते हो, तो ये छोटी चीजें आप सीखते हो। सीखते हो. या Yeah. And that is where the beauty, the finesse lies. जैसे शिखा जी ने एक वर्ड तुम्हारे लिए यूज किया, refinement. So वो refinement, it's in the small things only. अभी सुर तो तुम सुर में तो गा ही रहे हो, ये तो एक बात है ही. And I think it's a lifelong journey to keep polishing your sur.
बट अगेन ये सारी छोटी छोटी चीजें जो भी ऑक्सिलियरी बोल सकते हैं जिन्हें स्किल्स, दे एड अप so much more value. Yes, I agree. Yeah. So, Sapna is here, and we are seeing both of you for the first time together like this. I think a lot of your fans and audiences are going to see you together. Thanks to you. अरे या थैंक्स टू मी इन द सेंस, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है यार. आई कैन सी सो मच ऑफ हर रिफ्लेक्शन इन योर पर्सनालिटी अदरवाइज. कंप्लीटली, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो एक नया चैप्टर मेरे प्रोफेशनल लाइफ में खुला था व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द लिरिकल एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू हर कंप्लीटली. Yeah, and her cheer, her energy. So Yes, a lot of you is reflected in her. absolutely, absolutely true, absolutely. तो वाओ, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं फिल्मी लैंग्वेज में, दो जिस्म एक जान, वो Yes, कुछ सी. yes. फिल्मी तो हम है ही तो. गुड यार, यू गाइस आर लकी. कुछ हो जाए सपना के लिए, जैसे तुमने गाया भी, सपने में मिलती है उस गाने की कुछ लाइन. हाँ, करेक्ट. तो अभी कुछ सोचना पड़ेगा क्या क्या. What should I sing? You want to take a break and have water or something, you can do that. No, that's okay. That's fine. I'm comfortable. क्या गाया जाए? Sapna wants to prompt you. हाँ, मेरा चॉइस काफी वहां से आता इन्फ्लुएंस है. होता है. हाँ, आई नो वन सॉन्ग. हेमंदा का गाना है वो. प्लीज, क्या बात है. तो रात हसी, ये चांद हसी, तू सबसे हसी मेरे दिल भर, और तुझसे हसी, और तुझसे हसी तेरा प्यार, तू जाने ना, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो हल्की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो ये नयन डरे डरे. वाह, माहौल बदल दिया एकदम, मतलब क्या बात है. थैंक यू सो मच. कभी कभी हमें लगता है हम गलत जमाने में पैदा हो गए, बिकॉज द सॉन्ग्स दैट वी लाइक, यू नो, हमें यही सब गीत पसंद है. ये नैन डरे डरे, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. या या व्हाट आर That's चांसेस सागर के शायद इस जमाने में इसलिए पैदा हुए कि वो लेगेसी कंटिन्यू हो पाए. करेक्ट. सो तब तो रफी जी ने ये गाए, किशोरदा, सो मेनी सिंगर्स, हेमंदा जैसे तुमने अभी गाया, तलत महमूद, तलत साहब. जी. लेकिन आज के जमाने में अगर इन गानों को पसंद करने वाले तुम्हारे जैसे गायक ना हो तो ये गाने नहीं आगे जा सकते. एंड वेरी ट्रू. एंड फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो गाने ट्रूली टाइमलेस होते हैं. देयर इज नथिंग लाइक ओल्ड सॉन्ग. हाँ, वाह, पुराना गीत ऐसे कुछ नहीं होता है. क्या बात. अगर लिटरेचर में, अगर अभी तक लोग Jane Austen. जेन ऑस्टिन पढ़ रहे हैं, अगाथा क्रिस्टी पढ़ रहे हैं, हम्म. उर्दू में हम गालिब अब तक पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें ट्रूली टाइमलेस है. टाइमलेस. या एंड इमोशन, इंसान तो इंसान ही है सालों से, जब से इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, इमोशन भी सेम है लोगों के. सेम. तो आज के जमाने में भी हम गा सकते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. राइट. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो व्हिच मींस यू आर सेइंग कि जनरली वी कनेक्ट विद मॉडर्न एक्सप्रेशन. जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं, मोर और लेस 10-15 साल आगे पीछे, वी कनेक्ट विद द म्यूजिक, द पोएट्री ऑफ दैट ईरा. हम्म. बट ये कुछ एक्सप्रेशंस जो है वो टाइमलेस है. तो तुम भले ही 2002 में पैदा हुए हो, 98 में हुए हो, बट वो 40s का कोई गाना, 70s के गाने की कोई पंक्ति, वो म्यूजिक पीस, उसको तुम यूज कर सकते हो टू एक्सप्रेस.
And Correct. for that, but you need an exposure. And that's True. where you connect. That's where you connect generations with the timelessness of the rich music which we have, the heritage. True. That's true. We've It's a always said, that for normal people like me, बॉम्बे में इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लिए हुए लोग, तो जी, हमने जी, शायद शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, या जब तक स्कूल में थी तब तक हिंदी कविता भी पढ़ ली। जी, बट हमारे लाइफ में शायरी, पोएट्री, ब्यूटी, ये सब गानों के थ्रू ही आई है, हिंदी उर्दू गानों के थ्रू। तो true. जब कोट करना हो, जब दिल की बात बतानी हो, तो गाने ही याद आते हैं। नॉर्मल इंसान True. के लाइफ में म्यूजिक ब्रिंग्स पोएट्री, ब्रिंग्स Poetry. जॉय, ब्रिंग्स रोमांस। Absolutely. चाहे वो रोमांटिक इमोशंस हो या कॉम्प्लेक्स हो, आप समझा नहीं पा रहे हो खुद को कि you are not aware of what's happening, but you listen to a song and then you're like, हाँ, मेरे साथ मेरे मन में ये चल रहा है. So Sapna, any song that you want Sagar to sing for you right now? वैसे तो सारे रोमांटिक गाने आई क्लेम कि उनके मुंह से आए हैं तो मेरे लिए ही है। Yes. But एक duet हो जाए सागर एंड सपना नो नो। ऐसा. जैसे मैंने आपको बताया कि शी इज अ राइटर, आई एम अ सिंगर, और दोनों गाएंगे तो सुनेगा कौन? अभी आप हैं सुनने के लिए, शिखाजी भी हैं सुनने के लिए, बट ड्यूएट तो मुश्किल है। नो वे। मेरा इतना इतना खराब मतलब सिंगिंग के मैं खुद को भी वो नहीं सुनाना चाहती, फॉरलेस दूसरों को। ओके ओके, तो सपना कुछ पोएटिक एक्सप्रेशन तुम्हारी ओर से सागर के लिए, if you can think of Poetic expression. There is a line in this movie called Julie and Julia, ओके. जो फूड मूवी है, बट उसमें मुझे लाइन पसंद है कि यू आर द बटर टू माई ब्रेड एंड यू आर द ब्रेथ टू माई सोल। तो वो हमेशा मुझे फील हुई है कि साथ में आए हैं, साथ में ही जाएंगे, वैसा वाला। Touch wood and God bless you both really. Thank you so much. So yeah, तुम फरमाइश सागर को गाने की. फरमाइश तो वैसे तो कई सारे गीत हैं। She's asking me to ask you to sing a song. Yes. Okay, let me see which one. Sing something from Gulzar only then. From Gulzar. Okay, Gulzar again. What shall we sing? सोचना पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी चलेगा, गुलजार ने कोई और। चलिए, गुलजार तो एक कॉमन पैशन है ही। जी. लेट मी सिंग अ सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन हर फेवरेट एक्टर। शी लव्स आमिर खान। ओहो, ओके, क्या बात है, क्या बात है. एंड एक गीत है मजरू साहब का अगेन। हाँ, क्या बात है. कयामत से कयामत तक. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। There you go. Oh my God, wow. फुल सर्कल। Full आज तो आपकी वजह circle. से, हाँ हाँ, आज तो बहुत यादें ताजा हो गई है आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। Oh, pleasure is Making us absolutely walk mine. this memory lane. या मैं सोच रही हूँ इसमें से मेरे माइंड में सबकॉन्शियसली चल रहा है, इसका रील बनाएंगे, इसका रील बनाएंगे, इसका रील बनाएंगे. थैंक यू फॉर गिविंग सो मेनी रील मोमेंट्स. Awesome. बट अब मैं समझ रही हूँ सपना की why is Sagar always in a hurry to rush back home after a show. So he I think he wants to come and share with you क्या क्या हुआ, कैसे गाया and all that. अच्छा, सौम्या ने भी बताया. No, please continue. सौम्या ने भी बताया you are very creative about medleys and all of that. तो हम medleys
कुछ तुमसे सुनते हैं. But one more thing, how is he as a father, Sapna? So we can see that he's completely great as a partner. वो और लट्टू है. मतलब अगर ये क्रिंज है तो मैं खुद, मुझे ऐसा लगता है यार तुम लोग कितना ऐसे एक दूसरे का कौतुक करोगे, ऐसा मराठी में बोलते हैं ना कौतुक. वो लोग बहुत ज्यादा जनरली किड्स आर लाइक कि चलो मॉम सॉफ्ट टारगेट है, मॉम से ज्यादा ही इज क्रेजी फॉर सागर. मतलब वो 2 वीक लंदन में थे, मुझसे ज्यादा रोज श्लोक का रहता था कि हैज डडा कॉल्ड, कैन वी स्पीक विद डडा. ही इज अ वेरी गुड फादर, वेरी जेंटल, नरिशिंग, and मतलब practically hands on too. Right from the day Shlok was born, he's been an equal partner. अभी भी वो होमवर्क हो या उसके स्कूल के जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, मुझसे ज्यादा सागर इज इन्वॉल्व. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ Oh, वेरी कमिटेड फादर एज अ पार्टनर. incredible, यार सागर. क्या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. the way you are on stage, मतलब ऐसे लगता है कि तुम तो बस रियाज ही करते होंगे and all your attention is for your craft. But वो है ना एक लाइन की, सिर्फ रोटी कमाना ही जरूरी नहीं, मगर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना भी उतना ही जरूरी है. So I think बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली ट्रू. इनफैक्ट आपने सही बताया कि हर इवेंट के बाद माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑलवेज इज कि घर जाके ये बताना है मुझे कि आज ये हुआ. एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव सपना एज माय पार्टनर, कि true. वी शेयर सो मेनी थिंग्स. Yeah, she कोई has a चॉइस भी नहीं है, कोई चॉइस भी नहीं, आई एम स्टक विथ यू, वो बात है. मैंने यस, बहुत सारे जन्म बुक कर लिए हैं अभी. साथ के बियॉन्ड. यस. ओके. वाह, नाइस. एक चुटकुला था, किसी ने पूछा गुरुदेव को कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है क्या? एंड देन गुरुदेव वाज लाइक, देखो, अगर गड़बड़ चल रही है तो समझ लो ये 7वां जन्म है, और सब सही चल रहा है तो समझ लो कि अभी शुरुआत हुई है और 7 जन्म और बाकी है. आई थिंक आई कैन सी यू, आपका तो ये शुरू हुआ है, शुरू ही हुआ है. ग्रेट, ग्रेट. Awesome. सो मेडलीज, कुछ सागर. प्लीज. मेडलीज काफी सारी है वैसे दिमाग में, एंड कई बार लिरिकली वो मेडलीज आई लाइक टू जॉइन. कभी कभी म्यूजिकली वो चीजें जॉइन हो जाती है. या, जैसे मैंने मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 गीत हैं, एक ही राग में वो कंपोज हुए हैं. एक वो गीत है, बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना. ये एक प्रेयर है. और एक वो प्रेयर है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे. तो ये जब थॉट पहली बार दिमाग में आया था तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि एक राग में 2 प्रेयर्स कंपोज की गई है फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, कि म्यूजिक के थ्रू 2 अलग अलग सिविलाइजेशन साथ में आते हैं और एक खूबसूरत प्रार्थना बनती है. वाह, एंड वी आर प्रेजिंग ब्यूटीफुल. द लॉर्ड. या, आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था मेरा. ये जी. काफी अप्रिशिएट हुआ था, काफी लोगों ने लोगों के दिल के तार इसमें चढ़े थे. पीपल हैड लव्ड इट. सो Yes, yes. And to observe this and bring them together, that is where your credibility lies as a keen listener also. And this we are discussing when India and Pakistan have announced ceasefire. So yeah, very, very beautiful moment. yeah. Yeah. Yes. So Sagar, there's a small rapid fire for you. Okay. And before that, are we to cover anything? कुछ बाकी है क्या? फोटोग्राफी की बात नहीं हुई, वो एक छोटा सा कुछ एक लाइन. I think Ananya's bite is there. Ananya's bite, and we have some pictures
of yours from with legends. Yeah. Yeah. So rapid fire end में करते हैं. Yes. This much I believe. Shikha ji is here. Thank you, Shikha ji, for hanging around. Okay. I'll have to check the video. Give me a moment. Yeah. In case you need a break, you can take a break and come back. Sure, sure. I'll just put myself on mute. Yeah. Sagar, I'm back. So you there? Okay. Yes. So we'll see Ananya's video and then rapid fire. I think that there will wrap up. Yeah. ठीक है ना? कुछ रह नहीं गया ना सागर? I Anything think those experiences with some legends, वो जो था एक, हाँ, those photos and yes, yes. तो पहले वो देख लेते हैं. हाँ हाँ. मैं शेयर स्क्रीन शुरू कर देती हूँ. Yeah. Can you see the picture on the screen? Yes. Okay. Stop share. So Sagar, of course, we spoke about your beginnings, as in how did you learn music and how did you got into it. Yeah. So Sagar, we got to know about your humble beginning. How did you start learning music? But what happened after that? And Shikha ji Indian Idol का भी mention कर रहे थे, तो ये क्या connection है? So around 2004, 2005, Okay. I had participated in Indian Idol. Oh. And so that was the first time एक nationwide fame तो खैर थोड़ा बड़ा शब्द है, face value एक थोड़ी बढ़ जाती है when people start recognizing you. Yeah. So I was 19 or something
around that Oh. time. तो काफी यंग एज में आई फील एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस है वर्ल्ड स्टेज का. तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वेयर आई गॉट टू मीट सोनू निगम फॉर द फर्स्ट टाइम, अनु Oh. मलिक, फराह खान, दे वर द जजेस एट दैट टाइम. हाँ तो एंड फिर वो टाइम पे ना सोशल मीडिया भी नहीं था. मैं हाँ, आपको बताऊं करेक्ट तो करेक्ट. फेसबुक ऑर्कुट हुआ करता था वो टाइम पे. Oh इफ my यू God. रिमेम्बर ऑर्कुट. Yes, I had an account. तो Yes. आई रिमेम्बर वो टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड एक्सपीरियंस्ड कि दूर देशों से लोग मुझे मैसेज करते थे कि हमें आपकी आवाज़ पसंद है एंड आपके गीत हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है. तो Wow. एज अ 19-year-old 20-year-old एट दैट एज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट कि इतने दूर से दुनिया के किसी कोने में कोई मुझे सुन रहा है. तो ये मुझे बहुत दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड Wow. वहां से जर्नी जो मेरी शुरू हुई, तो अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है. तो मुझे एक चीज यहाँ पर ये सीखने को मिली कि स्टेज पर होना ये सिर्फ सिंगिंग नहीं होता है. पुराने जमाने में इट यूज टू बी लाइक यू कैन स्टैंड ऑन द स्टेज एंड यू कैन सिंग अ सॉन्ग, वो एक था. बट आजकल आज जमाना बदल चुका है. टुडे यू हैव टू बी मोर एंटरटेनिंग, यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट नाउ कि ऑडियंस एंगेज भी होती है आपके साथ. आप सिर्फ गाते नहीं हैं, आपको एंटरटेन भी करना है. एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको डांस करना है स्टेज पे. Hmm. एंटरटेनमेंट का ये मतलब है कि आप एंगेज करोगे ऑडियंस को. Hmm. एंड आई थिंक ये चीजें व्हेन आई वर्कड विद अ फ्यू पीपल, अ फ्यू लेजेंड्स, Oh. तो मुझे काफी सीखने को मिले. फॉर एग्जांपल सुदेश भोसले जी के साथ जब भी मैंने स्टेज शेयर किया है, जी. ही इज अ पावर हाउस परफॉर्मर. Oh. तो मैंने उनसे ये सीखा कि स्टेज पर एक मोमेंट भी डल नहीं जाना चाहिए. यू शुड ऑलवेज, योर ऑडियंस शुड नॉट हैव एनी टाइम टू थिंक कि चलो अभी ब्रेक हो गया, चलो अभी वड़े Hmm. खाने जाते हैं, चलो सैंडविच खा लेते हैं. दे शुड नॉट गेट एनी टाइम. थ्रू Hmm. आउट दे शुड बी ग्लूड टू देयर चेयर्स. ये मैंने Hmm. सुदेश से सीखा है कि Wow. यू हैव टू बी ऑन योर टोज. Hmm. आप उनको सॉफ्ट गाने, नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स सुना के भी आप एंटरटेन कर सकते हो. आप Hmm. उनको मस्ती भरे गाने सुना के भी आप एंटरटेन कर सकते हो. तो ये मैंने उनसे बहुत बड़ी बात सीखी थी. वाह, क्या बात है यार. या Wow. I think we have couple of pictures also. Let me see if I can share the screen. There you go. Can you see the screen now? यस, ये काफी स्पेशल मेमोरी है. Yeah. जब सचिन तेंदुलकर साहब के घर पर मुझे 3 बार परफॉर्म करने का मौका मिला है. अरे वाह. यस. एंड वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं म्यूजिक को. आई रिमेम्बर, ये मेरी बहुत स्पेशल मेमोरी है सचिन तेंदुलकर के साथ जी. कि जब मैंने उनके घर पे परफॉर्म किया था, आई थिंक अराउंड 12 to 15 पीपल फ्रॉम हिज फैमिली वर देयर टू लिसन टू द म्यूजिक. एंड प्रोग्राम शुरू होने के पहले उन्होंने सबको बताया कि प्लीज सब लोग अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट पे रखिए, लेट्स रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट. एंड वाह. वाह. पूरा पूरा 2-2.5 घंटा उन्होंने सुकून से गाने सुने. तो फॉर अ लेजेंड ऑफ दैट स्टैचर Yeah, कि God of cricket. God. यस, वो इतना बड़ा इंसान जी. एक मेरे जैसे हम्बल आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देता है कि जब आप गाएंगे तो हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, हम कंप्लीटली आपको सुनेंगे. आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है कि नो वाकई. मैटर आप कितनी ऊंचाई आप हासिल कर लो, हम्म. लेकिन आप रूटेड रहते हैं. तो आई थिंक ये सीखने वाली बात है. आई बिल्कुल. रिमेम्बर आई रिमेम्बर आई टेल यू समथिंग फनी हियर. सचिन जी के घर पे पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया एंड देन वी हैड डिनर विद हिज फैमिली. ओके. तो एक तो ये मेरा बोस्टिंग पॉइंट होता है कि मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ डिनर किया है. आई नो. एंड देन प्रोग्राम के बाद में आई वाज अ लिटिल थर्स्टी. तो एंड उनके घर पे थे काफी सारे हेल्पर्स, तो आई वाज लुकिंग फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर. हम्म. एंड देन सचिन आस्क्ड मी कि सागर क्या हुआ, क्या चाहिए. तो मैंने बोला आई नीड वाटर एक्चुअली. सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर goes and gets water for me कि here is water. I वाह. was like, oh my God, ये अभी रिकॉर्ड पे नहीं है तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि सचिन तेंदुलकर fetched a bottle of water for me. And I was so touched. I was like, how? मतलब
इतना बड़ा इंसान यार, इतना हम्बल कैसे हो सकता है? Wow. Humility. But you know, these people are great not just for one reason, because they're good at their craft. Wow. Multiple factors. इतनी Multiple. humility, इतनी सादगी. Wow. I mean, मुझे goosebumps आ रहे हैं सोच के कि Yes. Sachin Tendulkar attended to you and It's a wow. memory I'm going to cherish. And humility की बात I've learned from कविता कृष्णमूर्ति जी also. उनके Wow. साथ जब मैंने इवेंट किया था, जी. तो she made me so comfortable. I was very nervous क्योंकि Hmm. बचपन से उनके गाने सुने हैं, and now you've got an opportunity to sing with her. Sing with her, yeah. तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई goof up ना कर दूं स्टेज पे, हाँ. क्योंकि इतने बड़े लेजेंड के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ. बट शी मेड मी सो कंफर्टेबल कि रिहर्सल में कि चलो सागर, अभी ये लाइन कैसे डिवाइड करनी है बता दो आप मुझे. और मैं सोच रहा हूँ कि कविता जी आप मुझे पूछ रही है लाइन कैसे डिवाइड करना है, इतना इतना आप मुझे कंफर्टेबल कर रही हैं. तो आई थिंक आई Wow. वाज, मतलब सो मेनी टाइम्स यू कम अक्रॉस पीपल जो खामखा उनमें एटीट्यूड होता है, हाँ. जो खामखा Yeah. टीम वर्क में परफॉर्म नहीं करते हैं, एक Hmm. अलग ही धुन में होते हैं. एंड देन यू वर्क विद दीज लेजेंड्स. तो दीज पीपल आर लेजेंड्स फॉर अ रीजन, नॉट बिकॉज, नॉट ओनली बिकॉज दे आर गुड एट देयर क्राफ्ट, दे आर ऑसम पीपल, Wow. Awesome human beings also. ऑसम ह्यूमन बीइंग्स. Wow. जैसे वो कहते हैं ना कि फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है, सूखा पेड़ तना होता है, पर फलों करेक्ट. से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है. तो करेक्ट. जितने टैलेंट्स है उतनी ह्यूमिलिटी भी है. एंड करेक्ट. सचिन जी, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन होने का कारण ही म्यूजिकल है. हम्म. उनके फादर को एस डी बर्मन के म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था. जी. और जी. यू नो दिस राइट. या. That is how he was named Sachin after यस. Sachin Dev Burman. So, but wow, yeah, and I think we have few more pictures. Yeah, let's share them too. Yeah, this one. हाँ, यहाँ पर दिख रहा है ना picture यस. की. यस. यस. Talking about Pavita ji, so that's we have on the screen. Ila Arun ji hai, Alka Yagnik ji and Asha ji hai. यस. You sung with Asha ji, is it? नॉट, आई हैवंट संग विथ हर. Mm-hmm. देयर वाज वन इवेंट जहां पर आशा जी के साथ बातें हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, उनका इंटरव्यू था, एंड वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स सेलिब्रेटिंग हर Oh, ऑन हर बर्थडे. ये बैंगलोर में इवेंट हुआ था. अरे वाह. एंड जस्ट टू शेयर द स्टेज, सो दिस Yeah. वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट आशा जी. तो Oh. जैसे ही वो आई, उनका जो ऑरा था, ऐसे जब थर थर पैर कांपते हैं ना, तो ऐसा हो गया था कि ओ माय गॉड, द आशा भोसले इज इन द हाउस. Yeah. एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आशा जी और कबीर बेदी साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे. और Okay. हम सब सिंगर्स, देयर वाज जी अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, हम उनके पीछे बैठे थे. जी तो जी. आशा जी कुछ किस्से बता रही हैं, फिर हम उनके कुछ गीत गा रहे हैं, Oh, ड्यूएट्स गा रहे हैं, सोलो गा रहे हैं. तो वो एक wow. मेमोरी थी कि उनके सामने हाँ. अ, जो गीत हमने दीवाना हुआ बादल इतने सालों तक गाया Oh. है नॉर्मली, वो आशा जी के सामने रफी साहब का पार्ट गाने की गुस्ताखी कह सकते हैं, वो हमने की थी. बट शी वॉज वेरी ग्रेशियस, एंड आशा जी ने कह दिया कि हाँ, अच्छा गाया आपने. तो ये लाइफ टाइम में मैं ऐसे, अच्छा आशा जी ने बताया कि अच्छा गाया तुमने, तो ये मैं रखूंगा लाइफ टाइम मेरे दिमाग में और दिल में. जनरली शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जितना उन्हें टीवी में देखा है यस. शोज यस. में, शी विल नॉट से अच्छा गाया इफ शी डजंट मीन इट. एब्सोल्युटली. 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 वो तुमको सुधारेंगी अगर उनको लगता है कि ये होना चाहिए था, वो होना मोस्ट डेफिनेटली. बड़ी प्यारी मेमोरी है वो. चाहिए. Yeah, wow. So, and we have one more picture, Sagar. I'll हम्म. quickly show that to all our listeners. So we have a celebrity on the panel who is very humble. Oh, these are beautiful memories. So let me tell you about each of them. लता जी को मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, षणमुखानंद हॉल की सेकंड बालकनी में उसका टिकट मैंने खरीदा था, क्योंकि वो सबसे सस्ता टिकट था. बिकॉज मुझे फ्रंट रो का से टिकट बहुत महंगा होता है, उतनी मेरी हैसियत थी नहीं कि उतना महंगा टिकट मैं खरीद सकूं. तो सेकंड बालकनी का लास्ट रो का टिकट मैंने खरीदा था, बिकॉज लता जी वॉज गोइंग टू कम इन दैट Hmm. शो.
and she came on stage and I remember for the first time I had seen, I started crying कि पहली बार माँ सरस्वती के दर्शन हुए हैं एंड आई कुड नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्यों रो रहा हूँ. ये तो खुशी का पल होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम मैं लता जी को देख रहा हूँ, बट वो वैसा ही पल था, ओवरवेलमिंग पल था. सेकेंड टाइम जब मैं उनको मिला तो षणमुखानंद ही था हॉल अगेन, एंड देन फॉर्चुनेटली आई गॉट टू गो बैक स्टेज एंड मीट हर. तो मैंने चरण स्पर्श किए उनके एंड उनसे मिला. मैं ज्यादा बात नहीं हो पाई, बट ये बहुत प्यारी मेमोरी है कि आई कुड सी हर इन पर्सन. in flesh. Yeah, yeah. I can totally imagine. शम्मी कपूर साहब का भी फोटो वहां पे था. उनकी एक मेमोरी है प्यारी सी कि इट वाज वन प्राइवेट इवेंट जहाँ पे वो आए थे एंड वो बता रहे थे अच्छा मेरे गाने कुछ गाते हो तुम. तो मैंने बोला सर आपके तो कितने सारे. हाँ, तो मैंने बोला कि हर पार्टी में, हर इवेंट में आपके गानों की जब तक मेडली नहीं होती तब तक वो पार्टी पूरी नहीं होती. हाँ. तो ही वॉज सो हम्बल अबाउट इट. इज लाइक आजकल लोग सुनते हैं ये गाने. मैंने बोला यही गाने सुनते हैं, जब तक आपके गाने होते नहीं महफिल पूरी नहीं होती. एंड आई Wow. रिमेम्बर चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मैंने बिकॉज ही हैड रिक्वेस्टेड दैट सॉन्ग, तो Oh, मैंने अच्छा. वो गाना वहां पे गाया था. और याहू वाला पार्ट जो वो शम्मी कपूर साहब ने किया था, याहू. क्या बात. लाइक ये भी एक मेमोरी है ना, आई एम गोइंग टू कीप इट माई सेल्फ कि शम्मी कपूर साहब ने याहू चिल्लाया था व्हेन आई sang चाहे कोई मुझे जंगली कहे. Wow. Yeah. And coming from humble background, we feel so much more overwhelmed. It is anyway Yeah, overwhelming because these people have done something phenomenal. So करेक्ट करेक्ट. sharing that space with them. एंड यू नो दे आर सच गुड पीपल कि ये मुझे चीज, आर्टिस्ट आपको पता है बड़े सॉफ्ट हार्टेड पीपल होते हैं, बड़े बड़े काइंड लोग होते हैं. एंड अगर कोई भी कुछ गलत सलत बोल दे तो हमें बुरा लगता है, राइट. True. एंड एट द सेम टाइम कोई इतना प्यार से आपसे पेश आए, आपको इंक्लूसिव तरीके से आपसे बात करे, तो यार हमारी तो लाइफ बन जाती है. मतलब हमारी मेमोरीज ये पूरी लाइफ टाइम की मेमोरीज है कि शम्मी कपूर साहब ने इतने प्यार से बात की, लता जी आशा जी ने इतने प्यार से बात की. तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड. Yeah. And this also brings me back to that point and how you are connecting generations. कि शम्मी साहब ने जब आपको पूछा लोग सुनते हैं ये गाने, तो and you could give him a very positive response because you were there in action यस singing यस. songs. So super, yeah. Working with legends, working with colleagues, who have grown together, who have become icons together. करेक्ट. एक और अमीन साहब के बारे में एक मैं कुछ कहना चाहूंगा. अमीन साहब के Immediate साथ Khayyam Sahab also, yeah. खयाम साहब ऑल्सो. तो अमीन साहब से एक चीज जो मैंने सीखी, आई रिमेम्बर वी वर डूइंग अ ट्रिब्यूट टू बिमल रॉय साहब. क्या बात है. वहां पे अमीन जी आए थे बात करने के लिए जी. एंड ही हैड कम फॉर अ ब्रीफ टाइम. वो कम समय के लिए आए थे, उनको कोई और कमिटमेंट भी था. तो हाँ. ही केम एंड फिर कुछ बातें थी, फिर कुछ सॉन्ग्स थे, फिर हाँ. कुछ और फेलिसिटेशन, कुछ और प्रोग्राम होने वाला था. तो उनकी बातें खत्म हुई अमीन साहब की और फिर कोई सॉन्ग चल रहा था. हम्म. तो somebody told अमीन साहब कि अमीन साहब आपका काम हो गया है, वी कैन टेक यू आउट नाउ. आप यू हैव सम अदर कमिटमेंट्स आल्सो, आप जा सकते हैं अभी. ही सेड नहीं, सॉन्ग चल रहा है, लेट द सॉन्ग फिनिश, उसके बाद मैं जाऊंगा. कि सॉन्ग के बीच में मैं उठ के नहीं जाऊंगा, इट्स डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द आर्टिस्ट. इमेजिन समबडी, यार फादर ऑफ इंडियन रेडियो वाह. अमीन साहब, एक सिंगर जिसको कोई जानता नहीं है उसको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मैं बीच में उठ के नहीं जाऊंगा, गाना खत्म होने दो उसके बाद मैं जाऊंगा. आई वाज लाइक यार, इतने इतने एथिक्स, इतने मॉरल्स इनके हाई हैं. देयर वाह. इज अ रीजन व्हाई दे आर ग्रेट. Yeah, yeah. This I have been learning, जैसे ये थर्ड एपिसोड है, तो इससे पहले भी मैंने ये सुना कि जो आइकॉन्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, दे आर लेजेंड्स फॉर अ रीजन. Yep. Not just the craft, it's not just the craft, but so many other things. Yes. खयाम साहब से कैसे मिलना हुआ था? We were doing a Khayyam night, an evening अच्छा. celebrating Khayyam Saab's songs. तो आपको पता है कि उनके गीतों में कितने सारे इंट्रिकेट हरकतें हाँ. होती है, पार्ट्स होते हैं. इवन इफ अ सॉन्ग, इफ इट साउंड सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल. ये ऐसे उनके एकदम एग्जाम्पल्स है कई सारे. अच्छा. तो मुकेश साहब से वो उनके जो भी गाने हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ. आप कभी कभी ले हाँ. लीजिए, कभी कभी मेरे दिल जी. में ख्याल आता है, तो वो ट्यून सुनने में सिंपल लगती है लेकिन द वे इट प्रोग्रेसेस इट्स वेरी हार्ड.
टू सिंग, Oh. या उनके और भी काफी सारे गीत हैं, तो उनके प्रोग्राम के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है। खयाम साहब सामने फ्रंट रो में बैठ के अगर सुन रहे हैं फिर तो हाँ। तो मतलब कोई भी आर्टिस्ट डर जाएगा। बट अगेन ही मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल कि आप बेझिझक होके गाइए अरे एंड भूल जाइए कि मैं यहाँ पर हूँ। आपने भी गाना ये कई बार सुना होगा, आपका एक अप्रोच लेके आइए उसमें, ओन द सॉन्ग, ओनिंग द सॉन्ग वाली जो बात होती है ना, वाह। कि यू ओन द सॉन्ग, आप उसमें घुल जाइए। द बेस्ट पार्ट, अगर आप फील अगर उस गाने का ला पाए, जी। दैट्स द अल्टीमेट मोटिव, कि कोई भी गाना आप पेश कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू कॉपी द सिंगर, यू डोंट हैव टू इमिटेट द सिंगर। हाँ एट द हाँ। सेम टाइम ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी लिबर्टीज ले, दैट इज ऑल्सो, उसकी भी एक सीमा It's a, होती है। it's a thin line. It's a या इट्स thin अ वेरी थिन line. लाइन कि आप कितने लिबर्टी ले और आप कितना यू स्टिक टू द कॉम्पोजिशन। हम्म बट ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल कि आप जो भाव है आप हम्म उसको पकड़ के रखिए। हम्म। एंड वो खत्म होने के बाद भी बैक स्टेज वो मिले एंड ही सेड कि अच्छा गाया आपने। तो अरे उनका अच्छा गाया आपने भी मेरे लिए काफी है, मेरे लिए सुपरलेटिव कॉम्प्लीमेंट हो गई कि अगर खैयान साहब कह रहे अच्छा गाया तो ठीक गाया होगा मैंने। नहीं नहीं, डेफिनेटली। और उनकी उर्दू भी इतनी खालिस है कि वो उनके सामने मैंने उर्दू का मैंने मैंने बात भी नहीं की कि अगर इनके सामने मैं बोलूंगा नहीं मुझे उर्दू पसंद है, फिर वो कुछ पूछते तो मेरा पर्दाफाश होने के काफी चांसेस थे। लाइक मैं बस थैंकफुल हूँ कि आपसे मुलाकात हो गई एंड काफी सीखने को मिला आपसे। वाह यार। सागर, यू कम अक्रॉस एज समवन हु इज बस मेरा ये इतना ये काम है, ये हुआ, और उसको फिर आप you don't carry it so much in your head, or you don't try to project yourself as मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ऐसे ऐसे भी करता हूँ. Walking in a very measured way, probably, or rather in your own space, या making space, and yet making your space. I think that's how you walk to the hearts of millions of your fans, starting from Orkut to आई नो, ऑर्कुड से इंस्टाग्राम। Instagram. The life has been very kind, people have been very kind, and I think एक कोशिश है सिंसियरिटी से काम करने की। हाँ. तो आई ट्राई टू बी एज ट्रू टू माई सेल्फ एज आई कैन, Yeah. and I think people have been very kind. I feel I'm grateful to life, I'm grateful to the Lord. Wow. We will hear one of your colleagues say something nice about you. Hopefully nice. I don't know what is coming. Let's hope. Okay, let's welcome Ananya Bhaumik. She couldn't be here, so she has sent a video. Sagar. I know Sagar since 2006. That makes it almost 20 years that I know him. And we've had so many years of doing gigs together, performing together, a lot of shows. And there are three things that set him apart. First being that he is knowledgeable about his craft. He knows the language of music. He knows the literature behind the songs. And that makes him a great musician. The second thing is that he has no tantrums, no attitude, and no airs about him. It makes him a very comfortable person to work with. The third thing is that he's a very, very nice person. And, as a result of which, our families share a deep rapport. Makes him not just my colleague, but also a very good friend. So nice, yaar. So sweet. So she spoke about three aspects: music, as in her opinion, you are a fabulous musician, a great colleague, which means a great professional space, and then a family friend also. Yes. So how do you connect? What lines do you connect with her So on? with Ananya also, it's a long association. Like she said, 2006, करीबन उस समय से हम आज तक दोस्त हैं, and we connect at multiple levels. कि म्यूजिक के बारे में तो बातें होती ही है. We discuss about life. We discuss about the most random things also. We discuss geopolitics. We discuss literature. We discuss lots of things. And like she said, हमारी families भी, Paddy, Ananya's husband, and me and Sapna, we catch up many times. तो हमारी काफी सारी बातें होती है about multiple things. Wow. And it was very gracious of her that she said those nice things about me. And I value that friendship a lot. Wow. Wow.
दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ लाइन, दोस्ती सिर्फ वो नहीं है जो हम एक साल में कितनों से करते हैं, दोस्ती वो भी है जो हम एक के साथ कितने सालों तक निभाते हैं। Beautiful. Isn't it? और It's beautiful. जितने भी आए सारे तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो कई कई सालों से, 15 साल, 20 साल, शिखा जी, 20 years। आई फील वेरी लकी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आई फील वेरी लकी टू हैव सच पीपल जिनके साथ मेरी वेवलेंथ मैच होती है। एंड दोस्ती ऐसी, जैसे आप कह रहे थे, दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत एफर्ट डालना पड़े। दोस्ती एफर्टलेस होनी चाहिए, राइट? तो आई थिंक ये लोग जो मेरी लाइफ में है, मेरी जिंदगी में है, मैं सच में वैल्यू करता हूँ। सुपर यार। Sagar, you're very fond of photography also. In fact, I to look forward to your posts when you're traveling, because those are postcard pictures. So ये कहीं से ऐसे शुरू हुआ था, मतलब? ये प्योरली हॉबी है मेरी, फोटोग्राफी। एंड क्योंकि ट्रैवल का शौक पहले से है। एक सिमिलैरिटी मैं आपको बताऊं जी। म्यूजिक और फोटोग्राफी में। Oh, तो कॉम्पोजिशन एक एक वर्ड है जो म्यूजिक में भी है और फोटोग्राफी में भी है, कि द वे यू कंपोज अ ट्यून एंड द वे यू कंपोज अ फ्रेम। हम्म। तो एक तरीका होता है, एक ग्रामर है, एक व्याकरण है इसके पीछे। संगीत के कॉम्पोजिशन में एक व्याकरण होता है, और फोटोग्राफी के कॉम्पोजिशन में भी एक व्याकरण होता है। जैसे रूल ऑफ थर्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्रेम बनाए तो एक रूल ऑफ थर्ड होता है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने बिल्कुल सीखा नहीं है फोटोग्राफी, ये टोटली इंट्यूशन से मैं फ्रेम बनाता हूँ। बट क्योंकि इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से, यूट्यूब जिंदाबाद, तो यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें, मैं ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हैं, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई फोटोग्राफी स्किल्स। Wow. एंड बिकॉज ऑफ म्यूजिक कई सारी खूबसूरत जगहों पे जाने का मौका मिलता है। तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि यू गेट टू डू व्हाट यू लव, विच इज म्यूजिक। यू गेट टू ट्रैवल, दैट्स योर सेकंड हॉबी। एंड वहां पे जाके यू गेट टू क्लिक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आई थिंक और क्या चाहिए लाइफ में? अरे सही है यार, मतलब काम है ही नहीं। काम है ही नहीं। हम निकम्मे, निकम्मे इन द सेंस फुर्सत में है। फुर्सत इज द वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि वो, मतलब आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी लाइफ पता नहीं कम लोगों को मिलती होगी, कि वी डोंट फील लाइक वी एवर वर्क। या ट्रू ट्रू ट्रू। वाओ। और ये जो तुमने फोटोग्राफी और म्यूजिक का कहा, आई थिंक लता जी ऑल्सो। वाओ सागर, तुम जिस तरह फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, इट रिमाइंड्स मी, लता जी की बायोग्राफी में पढ़ा था दैट उनको भी बहुत शौक रहा फोटोग्राफी का। जी। मैं हमेशा सोचती थी व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, एंड टुडे आई गॉट द आंसर फ्रॉम यू, सो ट्रू। थैंक यू so much. All ऑसम। right, some rapid fire questions. Let's. ओके, लेट्स होप आई एम रैपिड इन आंसरिंग। Yeah. All right. Most annoying moment of your career. अनोइंग मोमेंट, जब आप स्टेज पे गाते हो और लोग बातें कर रहे होते हैं। Okay. Most embarrassing compliment. एम्बैरसिंग कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ी मिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट है, जब आप कहते हो कि अरे आपकी आवाज तो किसी के साथ मैच ही नहीं होती। तो इट वाज नॉट सपोज टू बी अ कॉम्प्लीमेंट, एंड आई सेड ओ थैंक यू, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। तो उनका कहने का मतलब कुछ और था, कि अरे यू डोंट साउंड लाइक रफी, यू डोंट साउंड लाइक किशोर। आई सेड थैंक यू सो मच, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। क्या बात। That's wit and presence of mind. Okay. Ghalib और गुलजार. डू हैव टू चूज बिटवीन द टू? Yeah. नो, इट्स वेरी हार्ड, आई डोंट थिंक आई कैन। All right. Okay. सपना और हकीकत. Okay, that's a tricky one. Uh, in my personal life, Sapna has become my hakikat. So Oh. that's wonderful. एंड जो मेरे ड्रीम्स थे, मेरे लाइफ में जो मैंने सोचा था मुझे जो करना है, वो भी हकीकत बन चुके हैं। आई एम लिविंग अ लाइफ एग्जैक्टली द वे आई हैड इमेजिन, सो इट्स क्या, ट्रू। वाह, मैंने भी यही सोचा था कि तुम बोल दोगे फिर मैं कहूंगी सपना इज योर हकीकत, बट आई। ओके ओके, फोटोज विथ इफेक्ट और विदाउट इफेक्ट, फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड? अनफिल्टर्ड। हाँ, ओके। डे लाइट और फ्लैश लाइट?
Daylight or flashlight in photography? Yeah. I don't like flash. Okay. Yeah. Okay. Natural light. नेचुरल ठीक है ओके हेमंत दा या अरिजीत सिंह Hemant Kumar, hands down. Hemant Kumar, absolutely. ऑलराइट योर फेवरेट उर्दू वर्ड फेवरेट उर्दू वर्ड? ये सोचना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स हैं. फेवरेट उर्दू वर्ड? व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड राइट नाउ Yeah, I'm thinking because there are so many. There are so many. ओके Hmm. Wow, I never thought कि जिस चीज से मैं इतना प्यार करता हूँ हाँ उस चीज के बारे में मुझे इतना वक्त लगेगा. यू रिमेम्बर आ, 12th फेल में ऐसे था 12th फेल मूवी में वो बंदा हाँ, कहता कि तुम खुद के बारे में ऐसे लिखो हाँ, and he was blank he was उसको लग रहा था वो पार्टिसिपेंट को एस्पिरेंट को यूपीएससी के मैं खुद के बारे में तो नेचुरली लिख सकता हूँ यार इसमें करेक्ट, नहीं बात है बट व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग ही वाज लाइक सूझ नहीं रहा है बिकॉज करेक्ट. तो एग्जैक्टली वैसी हालत मच फिलहाल यहाँ पर है कि ये टॉपिक दिल के इतना करीब है कि एक एक कोई वर्ड उसमें से ढूंढना बड़ा मुश्किल है. actually yeah Yes. I understand yeah okay rains or winter आई लव मुंबई रेंज. व्हेन आई एम इन मुंबई आई लव मुंबई रेंज. ये डिबेटेबल टॉपिक होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है मुंबई की बारिश, मुझे बहुत पसंद है. हाँ, और विंटर जब भी मैं नॉर्थ में जाता हूँ तो वहाँ की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, मुंबई की बारिश. अरे वाह क्या बात है बहुत बढ़िया एंड फ्यू लास्ट क्वेश्चंस सागर या सो you are a sagar person or a mountain person आई एम अ माउंटेन पर्सन. Sagar going to mountain. How nice. Reverse order. यस. Okay. And your favorite song? माय फेवरेट सॉन्ग, जैसे कि मैंने बताया, मुझे हेमंत दा बहुत पसंद है. मुझे तलत साहब बहुत पसंद है. आई लव सॉन्ग्स जो थोड़े मिड्स और लोज में गाए जाते हैं. मुझे सॉन्ग जिनमें ऊंचे सुर लगते हैं मुझे नहीं पसंद. तो Okay. इवन रफी साहब के देयर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, उनका फोर्टे था ऊंचे गाने गाने का, लेकिन रफी साहब की भी अगर आप सॉफ्ट गीत सुने जी तो इतने खूब. फॉर एग्जाम्पल तेरी मेरे सपने, उसको ही ले लीजिए आप, कि वो एक मिड रेंज में गाया हुआ गीत है. तलत साहब के जलते हैं जिसके लिए मिड रेंज में गाया हुआ गीत है. हेमंत कुमार साहब का या दिल की सुनो दुनिया वालों, या सो ऐसे मेनी. you can't do this. ओके 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 ओके. You don't say the song, you sing them. या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो. मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो. या दिल की सुनो दुनिया वालों. Lovely, lovely. क्या बात है. जो भी ठहराव वाले गीत होते हैं मुझे बड़े पसंद है. जगजीत सिंह साहब के गीत हैं, अरे तो यशुदास साहब के गीत हैं. वाह एक जगजीत सिंह यार सागर I can't we can't have enough of you. Your singing. चलिए. अह, हम्म, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई. आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है. इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है. My God, बहुत बढ़िया यार क्या बात है सागर we can just go on listening to you like this. Thank you so much. You're so kind. You're so sweet. Thank you. And one last question, jackets or kurtas on the stage? Both. Both. I love both.
मैंने जैसे आपको पहले बताया था, स्पेक्ट्रम की दोनों चीजें मुझे पसंद है। मैं पोएट्री की बात भी इक्वली एंजॉय करता हूँ जितनी वाहियात बातें एंजॉय करता हूँ। तो मैं वेस्टर्न क्लोथ्स फैशन भी मुझे उतना ही पसंद है जितना मुझे शेरवानी और कुर्ते पहनना पसंद है। तो वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हाँ, ये तुमने सही कहा, यस। यस, सो वो होता है ना, एक हंस ही होता है जो मोती चुग सकता है, मोती के दाने, तो वैसा है तुम्हारा। आई थिंक योर टेस्ट इन लाइफ, इन म्यूजिक, फॉर एवरीथिंग, ओवरऑल होलिस्टिकली मोती के दाने चुगते हो तुम। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आज ये मौका दिया यार तुमने, द कहानी स्ट्रीट में आए। बहुत 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 अच्छा लगा सागर, तुमसे बातें करके, तुम्हारे दोस्तों से मिलकर, एंड सपना से मिलकर। वाओ, शी इज ऑसम। bubbling with energy and joy. The French सो phrase, joy de vivre, I think that's for her. So, Thank you. That's very sweet. I must thank you, Kay. You found me worthy of having a long conversation with, and we all are learning in this journey. बहुत कुछ सीखना बाकी है। जी तो उस जर्नी में जी आप हमारे साथ हैं, बाकी सौम्या है, एंड शिखाजी से इतनी चीजें सीखने को मिलती है। अनन्या और मैं, हम लोग इतनी हमारी प्यारी मेमोरीज है। So it's a learning process, and when we learn together, I think it makes it even better. yeah, yeah. I like to call it co-traveling. Co-travel. Co-traveling, yes. हम सफर. Hum safar. Yes. Okay, Sagar. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thoroughly enjoyed being with you. Yeah. चलो ठीक है, इसके बाद का सब एडिटिंग हो जाएगा। Okay, perfect. बाय, हैव अ गुड Thanक you. You नाउ। too. Have a good day. Bye.